پاکستان کے اداروں سے سوال ہے کہ کیسے آپ نے ان ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا. پھر سوال پوچھتا ہوں, میں اپنے اداروں سے سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا میں نے اکیلے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر ڈاکوؤں کو ملک کے خزانے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے؟ سے پوچھتا ہوں, اس ملک کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے؟ کیا آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ میں آئی ہوں تو آپ سمجھے کہ شاید ماننے آیا ہے, ماننے نہیں آئی تو مجبوری ہے. سنیں میری بات, جب آپ کا پرائم منسٹر اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے, ساری قوم کو. ہر ایک پاسپورٹ کی کئی دنیا میں عزت نہیں ہے جب ایک قوم خود ہی پرائم منسٹر کہتا ہے ہم تو بیکاری ہیں. یہ ہے بیکاری, یہ پیسے کے خدا کی پوجا کرنے والے, ان کے پیسے پڑے ہیں باہر, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, بینک باہر, بیلنس باہر ہے, ان کی بزنس باہر ہے, ان کی چھٹیاں باہر ہیں. ان کے بچے بیٹے کہتے ہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر, بیٹے کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں, ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں. بیٹے ایسے کہتے ہیں جیسے یہ برطانیہ کی مالک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, کلان بلڈنگ میں نہیں پیدا ہوئے. تو پاکستانیوں, یہ میں آج آپ کو اس لیے بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم خوددار قوم ہے. ہم کبھی اس طرح کے چوروں کے سامنے یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو. اچھا دوسری چیز, اب یہ سنیں, پہلی تو تکلیف ہوئی کہ امریکہ نے سازش کی, امریکہ نے سازش کی. یہ ذرا بھی سنیں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تکلیف تو امریکہ نے سازش کی. دوسری تکلیف کیا کہ سازش کر کے اس قوم کی اتنی بڑی توہین کی کہ اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اب میں آپ کو اس میں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان کو ڈاکو نہیں کہہ رہا, میں تو 26 سال سے پالیٹکس میں آیا ہی تھا ان کے خلاف جہاد کرنا, چوروں کے خلاف. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے بدلے میں کیا کہتے تھے, بھارت کے اخبار ان کے کیا کہتے تھے. کچھ تو اس عوام کی خدمت کی ہوتی, آج یہ بھی آپ کا نام لینے والے ہوتے. ان کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے, یہ مولوی ضیاء
इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुना नहीं हो, आपसे जंग ही रहे कि आप सियासी नहीं हैं। किसी मसीह वाले के पास चले जाए, किसी मर्द वाले के पास चले जाए तो आपको कहेगा गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर है। आप किस मुंह से जाओगे वाले शर्म तुमको फिर नहीं आती। जी कोई मैंने गलत तो नहीं कहा कि ये एक दूसरों को 20 साल से कह रहे थे चोर है, केस किए एक दूसरे के ऊपर, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर केस किए, जरदारी को जेल में डाला नवाज शरीफ ने 2 दफा चोरी पे, और आज सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं और मिलके पाकिस्तान का खून चूसने आए हैं। बल्कि मैंने ये तो आपने पाकिस्तानी देखे, बाहर के अखबारों में, बाहर की किताबों के अंदर दोनों की चोरियां लिखी हुई है, इनके ऊपर बीबीसी की चोरी की फिल्म बनी हुई है। तो मेरा आज पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। In Egypt, the Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. Though some of the Sharif family mills are now almost derelict, at the start of the 90s they prospered, with methods that were as farcical as they were illegal. What Malik investigated and put before the court were allegations that the family, having moved money out of Pakistan in the good times, were now bringing it back when they needed it. ये जरा बाहर के अखबारों में देख लें कि पेंट हाउस पायरेट्स का मतलब डाकू, ये देखें। सो ये बाहर के अखबारों में इनकी चोरियां, बाहर की किताबों के अंदर इनकी चोरियां के ऊपर लिखा हुआ है। ये इस किताब के अंदर रॉम सूस्किन की किताब सुन ले जरा क्या लिखा हुआ है कि वो कहता है कि अमेरिकी एजेंसीज ने फोन टैप किया, बिलावल भुट्टो को उसकी वालदा बता रही है कि किधर किधर उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसा रखा हुआ है, बैरूनी बैंक अकाउंट में। तो मैं फिर सवाल पूछता हूं, मैं अपने इदारों से सवाल पूछता हूं आज कि क्या इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ क्या मैंने अकेले ने ठेका लिया हुआ है? क्या यह आपका पाकिस्तान नहीं है? क्या आपको यह समझ नहीं आ रही कि जब आप मुल्क के ऊपर डाकुओं को मुल्क के खजाने के ऊपर बैठा देते हैं तो क्या आपको यह पता नहीं कि वो मुल्क तबाह हो जाता है? इन्होंने आते साथ ही अच्छा एक और जरा सुनिए, अभी नहीं, अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इन्होंने अखलाकियात कैसे सवाल की। उससे पहले मैं सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क में मिसाल दे दो कि जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, डाके के केसेस, पिछले 10 साल के केसेस, पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके सारे केस माफ किए, एनआरओ दिया, 10 साल वापस आए, चोरी की, अब आके ये दूसरा एनआरओ इन्होंने असेंबली में अपने आप को दिया। कभी दुनिया में मुझे किसी बनाना रिपब्लिक में बता दे कि असेंबली में इन्होंने नैब की अमेंडमेंट करके 1100 अरब रुपया माफ किया है। 1100 अरब रुपया। गौर से सुने, इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, इन्होंने नैब को खत्म कर दिया अपने केसेस बचाने के लिए। जो पाकिस्तान को अब आपका पैसा 1100 अरब रुपया वो इन्होंने माफ करवा लिया कानून के जरिए। मैं फिर से पूछता हूं, इस मुल्क के इदारों से पूछता हूं
सब मेरी जिम्मेदारी है। क्या आपका पाकिस्तान नहीं है? मैं अपनी अकीदत से पूछता हूं कि ये आपका काम है कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना, रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करना पाकिस्तान की जुडिशरी का काम है। मैं अदालत में गया हूं, चैलेंज किया मैंने नैब अमेंडमेंट्स, लेकिन मैं बड़े एहतराम से पूछता हूं कि कहीं ऐसा हुआ है आज तक कि आप जाके अपने कहीं हुआ है कि मुलजिम काजी बन जाए? क्या कहीं ऐसा हुआ है कि 16 अरब रुपए के एफआईए के केसेस शहबाज शरीफ के और वो एफआईए के ऊपर बैठ जाए और अपनी केसेस खत्म करवा दे, गवाह करवा दे? कहीं दुनिया में हुआ ऐसा? कहीं ऐसा हुआ कि नैब की अमेंडमेंट्स करके इस मुल्क के कौम के पैसे 1100 अरब रुपए का टाका पड़े? यही 1100 अरब रुपया, यही 1100 अरब रुपया खा देते हो। ठहर जाओ इसको। 1100 अरब रुपया, अगर ये इससे आधा भी पैसा हम सब्सिडीज दे दें, हम बिजली कम कर सकते हैं, हम गैस की कीमत कम कर सकते हैं, हम पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हैं और फजलुल रहमान की भी कीमत कम कर सकते हैं। एक तरफ कौम के ऊपर महंगाई का बोझ, महंगाई की दलदल में आवाम फंस रही है, और दूसरी तरफ अपने आप को 1100 अरब रुपए की NRO 2 दे रहे हैं। मैं अपने न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं, सुनिए जरा, देखिए सुनिए जरा गौर से। हमारे दीन में अल्लाह ने जितने भी अपने पैगंबर भेजे थे उन सब ने एक बात की थी कि आखिरत, हमारी आखिरत उस चीज के ऊपर है कि जितना अल्लाह हमें देता है उसके मुताबिक हम इंसानियत की खिदमत कैसे करते हैं। जो भी अल्लाह का दीन है, हमारा दीन, मसीहों का दीन, यहूदियों का, हिंदुओं का, जिसका भी दीन है, उन सबको एक ही पैगाम मिला था कि आपका दुनिया में इम्तिहान सिर्फ एक होगा कि जितना भी अल्लाह आपको नवाजेगा उससे आप इंसानियत के लिए क्या करते हैं। इमरान खान से जब अपने अल्लाह रब के सामने खड़ा होगा, वो कहेगा मैंने तुम्हें इतनी शोहरत दी, खेलों की ग्राउंड में इतनी शोहरत दी, बताओ तुमने उस शोहरत से इंसानियों को क्या खिदमत की। उसी तरह जो अदलिया है, जजेस से अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया मेरी जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए, बताओ आपने मेरी जमीन पे इंसाफ कायम किया या नहीं? क्या आपने कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया या नहीं? क्या आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए या नहीं? वो पूछेंगे आपसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि वो कौम तबाह हो जाती है जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़ा डाकू NRO ले लेता है, वो कौम तबाह हो जाती है। ये 1500 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया था। तो क्या आज मेरी अतिया से अल्लाह भी पूछेगा कि ये बेचारे जेलों के अंदर छोटे छोटे लोग जेलों में पड़े हैं,